Okay, so let's start the class. Assalamualaikum students. Previous class we have discussed prefixes. We have also discussed scientific notation, and I have told you that how we can convert a number from normal form to scientific form, or from scientific form to normal form. Now in today's lecture we will be doing the scientific. Sorry, we will be doing the significant numbers. ओके अभी तक हम बेटा जितना भी हम पढ़कर आए हैं ऑल दीज टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी भी ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स यू हैव स्टडीड about significant figures in class in your maths class as well. So I'll just be going through these significant figures. So significant numbers are basically those numbers that can be used with confidence. So those numbers that can be used with confidence are called significant numbers. So there are basically 9 numbers which are counted as significant. For example, numbers from 1 till 9 are significant. ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आपके जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, all these 9 numbers are your significant numbers. 0 is not a significant number. 0 जो आपका होता है वो आपका significant number नहीं होता. इसके अलावा जितने भी आपके numbers हैं from 1 till 9, all these numbers are your significant number. ये सारे numbers जो आपके significant number कहलाते हैं. अच्छा, there are certain conditions in which 0 become significant. ठीक है, so there are basically certain rules for significant figures. There are certain rules for significant figures. तो ये significant figures के आपके जो rules हैं ये मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ. रूल नंबर 1 आपका ये है कि 0 जो आपका होता है that is not a significant. All और उसके अलावा जितने भी आपके नंबर हैं all those are your significant numbers. ठीक है, so रूल नंबर 1 आपका ये रहा कि all non-zero numbers are significant. ठीक है, non-zero नंबर में आपका 1 से लेकर 9 तक ये सारे आपके नंबर आ जाते हैं. सो रूल नंबर 1 आपका ये है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल ये जो आपका नंबर यहाँ लिखा हुआ है 33.2, दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ये 3 फर्स्ट ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस 33.2 हैज़ 3 significant figures because all the digits present in this are non-zeros. ये सारे डिजिट आपके हैं वो non-zero हैं. So that's why all these numbers are your significant digits. Second आपका जो रूल है इसका, second rule of significant figures, that is this: the 0 between 2 significant digits are significant. If there is a 0, 1 0 or maybe a number of zeros that exists between 2 significant digits, then all those zeros will be counted as significant numbers. If zeros between 2 non-zero digits are also significant. For example, you have a number 2051. ये जो नंबर आपका 2051, इस नंबर में ये जो जीरो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, this 0 is between 2 and 5. So this 0 is between 2 significant numbers. So this 0 will also be considered as a significant number. तो ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है 2051, this number has 4 significant figures. इस नंबर के अंदर 4 significant figures हैं. This is your rule number 2. Now let's move on to rule number 3. Okay, rule number 3 आपको ये कह रहे हैं कि leading zeros are non-significant. ठीक है, leading zeros are non-significant. यानी अगर कोई आपका नंबर है, उस नंबर के शुरू में आपका 0 आ रहा है, उसके नंबर के you can say कि उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके zeros आ रहे हैं, then those zeros are not significant. For example,
वी हैव अ नंबर 0.54. इसमें बेसिकली देर आर 3 डिजिट्स, लेकिन आउट ऑफ दो 3 डिजिट्स significant numbers are only 2. There are only 2 significant figures and those 2 significant figures, those 2 significant numbers are 5 and 4. ये दो नंबर आपके हैं, सिर्फ ये दोनों नंबर आपके सिग्निफिकेंट है. इसके अलावा ये जो आपका जीरो यूज हो रहा है विच इज द लीडिंग जीरो, दिस लीडिंग जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर. सिमिलरली एक आपका और नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे 0.0032. आप इस डिजिट में, इस नंबर में ये जो आपके 3 जीरोस आ रहे हैं विच आर द लीडिंग जीरोस, ऑल दीज 3 जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली दिस 3 and 2, ये दो नंबर आपके हैं जो कि सिग्निफिकेंट है. ठीक है, सो दिस इज योर रूल नंबर 3 विच सजेस्ट दैट लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जीरोस अगर किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1000 है, ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इफ आई पुट जीरोस हियर, अगर इसकी राइट साइड पे मैं जीरोस पुट कर दूँ तो दीज जीरोस आर डूइंग नथिंग टू दिस नंबर. इन जीरोस की वजह से इस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो वी कैन से कि ये जो आपका नंबर है दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये जीरो आपके जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 आप ये कि ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, trailing zeros to the right are significant. This is your rule number 4. यानी कि अगर आपके राइट हैंड साइड पे जीरोस आ रहे हैं तो वो जीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे, वेदर उस जीरो की कोई वैल्यू हो या ना हो. जैसे कि आपको ये एक नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 92.00. ठीक है, 92.00. इस नंबर में आई हैव 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स. इसमें जो पॉइंट के बाद आपके ये 2 जीरोस आ रहे हैं, ये 2 जीरोस भी आपके सिग्निफिकेंट, इवन इन दोनों जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है. आप 92.00 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 92, बट सिंस दीज जीरोस आर द ट्रेलिंग जीरोस, दीज आर द जीरोस विच आर ऑकरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर. तो ये जो आपके नंबर्स हैं, ये नंबर भी आपके जो हैं दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड योर सिग्निफिकेंट नंबर्स. तो ये जो आपके जीरोस हैं, ये जीरोस भी आपके जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे. सो जो आपके ट्रेलिंग जीरोस होते हैं राइट हैंड साइड के ऑफ अ डेसिमल नंबर, दीज आर ऑल योर सिग्निफिकेंट नंबर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 59200, अब इसमें जो आपके जीरोस आ रहे हैं ऑल दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ये सारे जीरोस जो आपके वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू रूल नंबर 5. ओके, रूल नंबर 5 आपका ये सजेस्ट करते हैं कि the trailing zeros in a whole number with the decimal shown are significant. ठीक है, थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट आपको शो हो रहा है तो वो फिर आपको जो सिग्निफिकेंट नंबर है, अदरवाइज इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर. So trailing zeros in a whole number with a decimal shown are significant. Placing a decimal at the end of the number is usually not done. ठीक है, अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि आप यूजली जो है वो डेसिमल पॉइंट डालते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर लिखा हुआ है 540 पॉइंट. अब 540 के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया. अब 540 के बाद आपने यहाँ पे जो पॉइंट डाल दिया, सो दिस पॉइंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दिस जीरो. ये जो पॉइंट है जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो यू कैन से के सॉरी, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट की वजह से भी क्या होगा, यू कैन से दैट दिस नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट नंबर. ठीक है, सो ये आपका जो नंबर है 540 और उसके बाद आपने एक पॉइंट डाल दिया है, ये शो कर रहा है कि आपके जो नंबर्स हैं ऑल दीज 3 नंबर्स 5, 4 and 0, ऑल दीज आर योर सिग्निफिकेंट नंबर. तो दिस इज योर रूल नंबर 5. रूल नंबर 6 आपका जो है वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है, दैट्स रिलेटेड टू दिस रूल. रूल नंबर 6 आपको ये कह रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर विद 2 डेसिमल पॉइंट श्योर आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस in a whole number with no decimal point shown are not significant. For example, the same number that I have written above, 540. Now in this number 540 I didn't mention point here. मैंने यहाँ पे decimal point mention नहीं किया.
सो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका जीरो है, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये जीरो जो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड दिस नंबर हैज ओनली टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दोज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 and 4। ये जो आपके 5 और 4 यहाँ पे यूज हो रहा है, इस नंबर में सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अलावा ये जो जीरो है, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसमें आई थिंक दैट इज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 7 में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल जी बेटा। सर 6 वाला नहीं समझ आया, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। ओके, 6 नंबर बेटा आपका ये कह रहा है कि अगर आप जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, दे आर टुवर्ड द राइट हैंड साइड। 6 वाला सॉरी 6 का है ना आपने बेटा? ओके, तो 6 वाला आप ये कह रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर एंड विद नो डेसिमल पॉइंट शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका जीरो है, दिस जीरो इज अ ट्रेलिंग जीरो, ये जीरो जो आपका है वो ट्रेलिंग जीरो है एंड देयर इज नो डेसिमल पॉइंट शोन हियर, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट शोन हियर। सो दिस मीन्स दैट ये जो जीरो आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये जीरो आपको जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो दिस डिजिट, ये जो मैंने यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है आपका 540, इस नंबर में 540 में देयर आर ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 and 4। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 7। ओके, रूल नंबर 7 आपका क्या है? दिस इज योर रूल नंबर 7। एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यानी इफ़ यू हैव एन एग्जैक्ट नंबर, तो उस एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। दिस रूल्स अप्लाई टू द नंबर्स दैट आर डेफिनेशन, यानी अगर आपको कोई नंबर है जो कि किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो आपके है दैट हैज़ जीरो, दैट हैज़ यू नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 1 मीटर, 1 मीटर जो आपका है दैट इज एन एग्जैक्ट नंबर, 1 मीटर इज एन एग्जैक्ट नंबर। और इसी 1 मीटर को वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल, 1.00 मीटर, both these are equal. Similarly, the same 1 meter can also be written as 1.00000। the same 1 meter can be written as this one, और फिर पॉइंट के बाद आपने जो है वो बहुत सारे आपने जीरोस लगा दिए। तो इस ये जो आपका नंबर है 1 मीटर, दिस इज एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये आपका एक बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। तो ये इस तरह का आपको जो एग्जैक्ट नंबर होता है, उस एग्जैक्ट नंबर के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरोस लगा दें, दिस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दिस एग्जैक्ट नंबर। तो ये आपका जो है वो दिस शोज दैट आपके जो हैं दीज नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो फिर आपके इनफिनिट हो गए। ठीक है, सो दिस इज योर रूल नंबर 7। रूल नंबर आपका 8 जो है वो थोड़ा सा मजे का है। लेट मी ओके ओके, रूल नंबर 8 जो आपका है, रूल नंबर 8 इज दिस। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक नंबर है जिसको आप 10 रेज़ टू पावर में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, वी हैव अ नंबर, जिस नंबर को आपने लिखा हुआ है एन, आपका कोई भी नंबर है, दिस कुड बी 10, 20, 30, 40, 5.02, 5.12, कुछ भी नंबर आपका, एन इज योर नंबर, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर एक्स, एक्स जो है उसकी कोई ना कोई पावर है। अब इस नंबर में, ये जो आपका नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आप जो नंबर लिखते हैं, इन नंबर्स में ऑल डिजिट्स दैट आर कंप्राइजिंग ऑफ एन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि एन, ये जो आपके नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, वेदर वहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, वहाँ जीरो नहीं लिखा हुआ, जीरो किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, दिस हैज़ ऑल सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे नंबर यानी 10 की पावर से पहले आपके जितने भी नंबर लिखे होंगे, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ये सारे नंबर्स आपके जो वो सिग्निफिकेंट होंगे। और ये वाला 10 सिग्निफिकेंट नहीं है, इवन ये जो पावर में x लिखा हुआ है ये भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक नंबर है 5.02 10 रेज़ टू द पावर
10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। आपका नंबर है 5.02 10 रेज़ टू पावर 4। दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट नंबर, और वो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके ये 3 है। 5 इज सिग्निफिकेंट, 0 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट। दिस 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, और आपका ये जो पावर में 4 आ रहा है ये भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी अगर आपका नंबर के साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है तो वो नंबर पॉइंट मतलब कि मल्टीप्लाई से पहले आपको जो भी नंबर लिखा हुआ है, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है, नंबर उसमें 0 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जितने मर्जी 0 आ रहे हैं, दिस नंबर इज सिग्निफिकेंट। और पावर में जो नंबर आपका लिखा होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो नंबर लिखे होते हैं, दीज नंबर्स आर योर नॉट सिग्निफिकेंट, ये नंबर आपके जो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। दीज नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो ये आपका रीज़न है, ये आपके जो है वो 8 रूल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर आपका जो है वो क्या है, कौन सा नंबर आपका सिग्निफिकेंट है, कौन सा नंबर आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि ये रूल जो है वो आपने बेसिकली जो है वो याद रखने हैं। दीज रूल्स विल बी आपने पेपर में आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि आप इन रूल्स को लिखो, लेकिन यूजिंग दीज रूल्स आपसे पूछा जाएगा कि भाई हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर, ये कितने सिग्निफिकेंट नंबर आपके हैं वो इस नंबर के इसमें एक्सिस्ट कर रहे हैं। Yes, but if you have any question regarding significant figures, you can ask me right now, or we will continue to the next topic. Sir, can you explain rule number 8 again? Okay, rule number 8 बेटा आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर, if there is any number written in scientific notation, if there is any number written in scientific notation I have taught you in previous class. Let's suppose कि मेरे पास एक नंबर है 5.02 10 raised to power 4. Now this number is written in scientific notation. This number is written in 10 raised to the power something. अब ये रूल आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, दिस रूल इज सजेस्टिंग कि जो मल्टीप्लिकेशन से पहले आपके जितने भी नंबर होंगे, ऑल दोज नंबर विल बी साइंटिफिक। मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको जितने नंबर होंगे, ऑल दोज नंबर विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इससे पहले जितने भी आपके नंबर हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज 3 नंबर्स 5, 0 एंड 2, ये तीनों के तीनों आपको जो है वो सिग्निफिकेंट है। सो दीज 3 आर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन आपको जो नंबर 10 पावर में जो नंबर लिखे होते हैं, दीज नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये आपका 110 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, ये आपके ये भी नंबर ही है। बेसिकली दीज आर ऑल्सो योर नंबर्स। इसमें जो है वो 4 जो आपका होता है, बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि 4 जो आपका होता है दैट हैज़ अ वैल्यू। तो 4 आपका नॉर्मली 4 इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, बट इन दिस सिचुएशन सिंस 4 इज इन पावर, सो 4 जब भी आपका 10 की पावर में चला जाता है, तो इन दैट सिचुएशन आपका ये जो 10 भी सिग्निफिकेंट नहीं रहता और जो 4 की पावर है वो भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं रहता। So this is your rule number 8 कि if any number is written in scientific notation, then the number n which is written in before n which is preceding the multiplication, जो भी नंबर आपने मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने लिखा होता है, that number is considered as a whole significant number। और पूरा नंबर आपका significant नंबर जो है कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज जो पावर में नंबर लिखे होते हैं, those numbers are your non significant number, वो नंबर आपके significant नहीं होते। Yes, but any more question regarding significant figures? No sir. Okay, so let's move on to the next topic. ये जो next topic हम करेंगे, ये topic भी आपका वही है जो कि आपने mathematics में किया हुआ है। So we will just quickly finish those topics. ये नंबर आपका topic आपका next है rounding off a number, ठीक है। next topic आपके rounding off a number. I think all of you must know what rounding off mean. राउंडिंग ऑफ में बेसिकली आप करते क्या हैं कि आप नंबर को जो है वो अपने, अगर आपका बहुत बड़ा नंबर है तो उसको आप नियरेस्ट कोई भी वैल्यू के ऊपर आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। प्रीवियसली आपने ये चीज़ क्लास 7 में 8 में आपने मैथ में पढ़ी होगी कि आप नंबर्स आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू राउंड ऑफ दोज नंबर टू नियरेस्ट 10 टू नियरेस्ट 100, ठीक है। सो ये जो आपने नंबर को नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 में आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जो है वो इसी तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास नंबर है 200 एंड लेट्स सपोज 25, ठीक है, सॉरी 27, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 227, और अगर इफ़ समवन आस्क मी टू राउंड दिस नंबर ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो 227 जो आपका, इसको आप जो नियरेस्ट 10 में आप जो राउंड ऑफ करेंगे, देन दिस विल बिकम 230 आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10।
क्यों? क्योंकि आपको जो 230, तो ये जो 30 है, दिस 30 में से ये नंबर 10th नंबर, तो ये जो आपको 30 है, दिस इज नियरेस्ट टू 27, तो आप इसको 230 बना देंगे। लेकिन अगर आप एक नंबर है लेट्स सपोज 222 और इस नंबर को आपको कहा जाए कि आप इस नंबर को राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10, तो ये जो नंबर 222 है इसका जो नियरेस्ट 10 होता है दैट इज 220। तो इस तरीके से आप नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर टोल्ड टू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 100, लेट्स सपोज कि आपका नंबर है 227, सेम नंबर है, नाउ यू आर राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट 100। अब 220 का जो 100 जो करीब 300 है दैट इज 200, तो 227 का जो को जब आप भी आप राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100 देन इट विल बिकम 200। सिमिलरली अगर आपके पास एक नंबर है 251, इस नंबर को आप जब राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100 देन दिस विल बिकम 300, तो ये नंबर आपको जो वो 300 बन जाएगा, क्योंकि 51 जो है दैट इज नियरर टू 300 एज कम्पेयर टू 200। तो इस तरीके से जो आप नंबरों को अगर आपने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए भी यूजली जो भी नंबर होता है उस नंबर को आप जो है वो हंड्रेड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट राउंडिंग ऑफ मीन, ये आपका राउंडिंग ऑफ कहलाता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव राउंडिंग ऑफ इन डेसिमल पॉइंट एज वेल। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 23 पॉइंट, आई हैव दिस नंबर, नाउ दिस इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आप इफ यू आर आस्क्ड टू राउंड आउट दिस नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, जो प्रीवियस वाले आपके दो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई हैं उसमें एक में यू आर राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 10th, सेकेंड में यू आर राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 100। नाउ यू आर नॉट राउंडिंग ऑफ योर नंबर टू नियरेस्ट 10th or nearest 100, now you are rounding off your number to decimal points. Let's suppose if I ask you to round off this number to 2 decimal places, तो 2 decimal places का मतलब है कि you will be, this is your 2 decimal, यानी कि decimal point के बाद there should be 2 number, so this 23 and point they will stay the way it is। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट डेसिमल डिजिट है पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है यू विल राइट इट द वे इट इज। लेकिन इसके बाद जो सेकंड आपका डेसिमल नंबर है, जो सेकंड डेसिमल नंबर सिंस यू आर राउंडिंग ऑफ इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो उसका जो सेकंड डेसिमल नंबर है उसको लिखने के लिए यू हैव टू सी द थर्ड डेसिमल नंबर। आपको थर्ड डेसिमल नंबर जो है वो देखना पड़ता है। नाउ इन दिस सिचुएशन द थर्ड डेसिमल नंबर इज 9 which is more than 5, which is more than 5। So if the third decimal number is more than 5 then you will increment the second decimal number with 1। तो आपका ये जो नंबर है when you round off this number to 2 decimal places, so this number will become 23.99, ये नंबर आपका 23.99 बन जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर ये है, if your number is like this and you are told to round off this number to nearest 2 decimal places, तो यू विल राइट डाउन 23 एंड पॉइंट और 9, ये तो आपके 3 डिजिट तो आपने वैसे ही लिखेंगे। लेकिन उसके बाद आपका जो सेकंड डिजिट है सिंस यू आर राउंडिंग ऑफ इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो उसके बाद आपका जो सेकंड डिजिट है इस केस का, उस सेकंड डिजिट को आपने 8 लिखना है, उसको यहाँ पर आपने 9 करना है। ये चीज़ करने के लिए यू हैव टू सी द थर्ड डिजिट इन द थर्ड डेसिमल पॉइंट डिजिट। तो यहाँ जो थर्ड डेसिमल पॉइंट डिजिट है दैट इज 1 which is less than 5, so I will not increase this 8 by 1, तो this 8 will be written the way it is। तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट में आप जब भी किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो डेसिमल पॉइंट पे नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए वी हैव टू सी द जो भी थर्ड डिजिट है 4 डिजिट है उसको हम देख के जब उसको राउंड ऑफ करते हैं। So this is the way of rounding off a number। तो आपका you can now you can round off any number to nearest 100th, nearest 10th, nearest 1000 or nearest 2 decimal places or 3 decimal places or whatever number of decimal places। तो ये इस तरीके से जो है हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर। तो राउंडिंग ऑफ अ नंबर हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। Okay, now let's move on to the, yes, any question? Yes. Next, move on to the next topic. Next topic जो हमारा है that is your okay, next हमारा topic है that is your truncating a number। अभी तक तो हमने round off किया। Now we will be truncating a number। अच्छा, truncating a number जो होता है उसमें क्या करते हैं आप, सिंपली रिमूव अ नंबर।
यूजली जब नंबर जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनमें हम जो है ट्रंकेटिंग यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 23.98952231, दिस इज द नंबर। नाउ इफ आई एम आस्क्ड टू ट्रंकेट दिस नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने जब नंबर को 2 डेसिमल प्लेस पे ट्रंकेट करना है तो देन यू विल राइट सिंपली राइट 22.98। इसके बाद जो थर्ड डिजिट है वो थर्ड डिजिट जो आपके वो 5 से ग्रेटर है 5 से लेस है, इट डजेंट मैटर, वो आप उस डिजिट को आप देखते ही नहीं है। आपके जो डेसिमल पॉइंट से के बाद आपके 2 डिजिट आपने ट्रंकेट करना था, डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट रखे, उसके बाद के जो डिजिट हैं नो मैटर व्हाट दे आर, आपने सारे डिजिट्स को आपने सिंपली रिमूव कर दिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटिंग अ डे। तो डिजिट को जब भी आप ट्रंकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक, तो उस डेसिमल प्लेस तक आप वो नंबर लिखते हैं और उसके बाद के जितने नंबर्स होते हैं ऑल दोज नंबर्स आर सिंपली रिमूव। उन सारे नंबर्स को जो है हम सिंपली जब वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रंकेटिंग ए नंबर। तो ये आपका जो है वो ट्रंकेटिंग नंबर होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर बेटा? एनीवन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। तो आज हमने किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी हैव डन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वी हैव डिस्कस सम कंडीशंस के जीरो जो आपका वो किस किस सिचुएशन में जो वो सिग्निफिकेंट होता है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द राउंडिंग ऑफ अ नंबर, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ट्रंकेटिंग ऑफ अ नंबर एज वेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर मेजरमेंट, जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसको करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टे, अदरवाइज you can leave from me.